So now we have a list or a category of multiple different possessive adjectives. मैंने जिस तरह आप सबको कहा था कुछ adjectives होते हैं कि आपने identify करना है, but कुछ होते हैं that are very limited. For example, adjectives that are possessive are limited and not a lot. So in that case scenario हम लोग उन सारों को याद भी कर सकते हैं. और most probably ज़्यादातर times जो multiple different types होती हैं adjectives की वो बहुत versatile और बहुत broad होती हैं. So in that case scenario we can't remember all of them, but we can identify them through their definition and through their name. Now my, so possessive, for example possessive adjective हमारे पास है my और possessive pronoun is mine. His, it's a possessive adjective and his is also a possessive pronoun. Now in this case scenario it's a bit more different. हमारे पास कुछ होते हैं कि जो structure based होते हैं. अब आपका structure होता है, for example adjective के आसपास you gotta have a noun or pronoun after it, a subject after it. So that is a, for example his phone हमारे पास noun है, but अगर हम कहते हैं his, तो now अब his phone के scenario के पास हमारे पास simply है वो एक possessive adjective, but in other case scenarios it can also work as a possessive pronoun. Structure के ऊपर depend करते हैं और sentence के ऊपर depend करता है, and that changes the whole meaning of the sentence. Her, hers, हमारे पास her है possessive adjective, possessive pronoun is hers. Their, theirs, our, ours, your, yours. हमारे पास मुख्तलिफ different हमारे पास changes आते हैं. Now some can be different. For example my, mine हो गया. कुछ change बिल्कुल नहीं होते जिस तरह his हो गया. But कुछ होते हैं जिनके अंदर बस सिर्फ हमने s add कर देना है, and that turns from a possessive adjective to a possessive pronoun with us. Let's go forward from this chart. Now next up we have interrogative adjectives. अब interrogative क्या होता है आप सबको पता होगा. There are types of sentences. There are positive, there are negative, there are interrogative. Things that are appreciating or that are agreeing are positive. Things that disagree or do not appreciate or criticize are negative. Or things that question and ask are known as interrogative. Now let's go towards the definition. Interrogative adjectives are used to ask a question. It's simple क्योंकि नाम से ज़्यादातर मैं क्या बच्चों को सिखाता हूँ कि जो नाम होता है, अब कुछ केस सिनेरियोज होते हैं जो कि डिफरेंट होते हैं तो हमें नाम से समझ में नहीं आता कि क्या है, बट ज़्यादातर नाम के अंदर ही वो मीनिंग छपी होती है, वो मीनिंग का एक सिंपल आंसर होता है, डेफिनेशन याद करने की ज़रूरत ही नहीं होती. इफ़ यू अंडरस्टैंड सच अ थिंग सो इन दैट केस सिनेरियो इट्स क्वाइट ईजी. इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव मैं डेफिनेशन को नहीं देखूंगा बट मुझे समझ में आता है कि इट्स एडजेक्टिव्स, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स आस्क क्वेश्चन क्योंकि वो क्या होते हैं, इंट्रोगेटिव होते हैं. सो इट्स सिंपल, लर्न अबाउट द आंसर, लर्न अबाउट द नेम. आप सीखें ना कि क्रैम करें. सो डेफिनेशन वोंट टेक यू एनीवेयर. आई बिलीव कि आप सिर्फ नेम पर भी फोकस करें तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो क्या टॉपिक है. इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स आर हुज, व्हाट एंड विच. अब हमारे पास मेजर जो 3 हैं, हमारे पास मुख्तलिफ और भी आ सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द केस सिनेरियो, बट द मेजर 3 दैट 99% ऑफ द टाइम हम यूज़ करते हैं आर whose, what and which. Example, which sim do you use? Which हमारे पास क्या आता है यहाँ पर, which with us is an interrogative adjective. Which sim do you use? Sim हमारे पास है noun, pen हमारे पास है noun, game हमारे पास है noun. Whose is an interrogative adjective? What is an interrogative adjective? It's simple, very simple, nothing to take tension about. Which is in this case scenario with us, just as I told, interrogative adjective. और whose भी है, what भी है, ये हमें शो कर रहे हैं कि क्या, कब, किसका. सो इन दैट केस सिनेरियो नॉट कब बट which one, कौन सा, किसका, और whose with us is किसका, एंड what क्या. सो यहाँ पर ये हमारे पास 3 हैं. और जिस तरह हमने कहा सीखा कि एडजेक्टिव्स के बाद डायरेक्टली हमारे पास नाउन्स आते हैं या प्रोनाउन्स आते हैं. सो इन दिस केस सिनेरियो सिम है, पेन है, गेम है. दीज आर विद अस नाउन्स. डू यूज, इज इट, do you play. अब हमारे पास do you वाला है और हमारे पास is it वाला है. now whose pen is it या whose game is it. अब हमारे पास different structures होते हैं depending on the sentence, but we can change those structures a bit. अब कैसे change करते हैं, I've taught you people that in the past. now one major thing that lots of people don't do is adding the question mark. it's very simple, मुझे पता है, but lots of people don't do it. it's important. और साथ ही साथ मैं एक और चीज़ भी आप सबको सिखा देता हूँ that your वाले के अंदर
इस वाले योर के अंदर और इस वाले योर के अंदर कुछ बहुत बड़ा डिफरेंस होता है हमारे पास, बट व्हाट डिफरेंस इट इज वेरी ब्रॉड, बट व्हाट डिफरेंस वी हैव विद इट इज वेरी ब्रॉड, डिफरेंट होता है। अब इसके ऊपर मैंने एक अलग सी वीडियो बनाई है, यू गाइस कैन वॉच अपॉन इट। तो ये सिंपल एप्रोस्ट्रफीज होती हैं, ये सिंपल वर्ड्स होते हैं, बट दीज वर्ड चेंज द होल मीनिंग। एक सेंटेंस है तो वो मीनिंग मुकम्मल तौर पर चेंज कर देता है। योर, आपका, योर, तो योर कहते हैं कि तुम, या योर अ लेजी पर्सन, तुम एक लेजी बंदे हो, बट योर फ्रेंड इज अ लेजी पर्सन, तो आपका दोस्त, आपका। सो दीज आर सिंपल चेंजेस। मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर बताया, बट इन सिंपल लैंग्वेज छोटे से छोटे अप्रोस्ट्रफीज कैन चेंज द मीनिंग, बट यहाँ पर ज़्यादा वर्सेटाइल केस सिनेरियो हमारे पास, या ज़्यादा जो चीज़ ज़्यादा हम लोग कह सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट इट इज स्टिल इम्पॉर्टेंट इफ यू आर टेकिंग अ टेस्ट एक्सेट्रा, इज द क्वेश्चन मार्क। सो नेवर फॉरगेट पंक्चुएशंस। Punctuations change the whole sentence meaning and answers.